Sorry, sir. Actually, I got a call from HR only. Okay. Yeah. So are you ready now? Yeah, definitely. That's great. Sir, I have a question. Like, when should we start the communication part only? Only the communication part. Like one-to-one, conversation. Conversation. Yeah, definitely. We can start doing once we complete the sheets. Okay. Definitely. So we can converse on any topic and we can have the group discussion also. Okay. So let's get started. Yeah, sure. अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? What we are learning now? Do you understand? Yes, sir. The framing or sentences. Yeah, definitely. We are learning the sentence framing. Once we are clear about the sentence making, so now we can become the more confident to speak. Because when you want to speak, you need basically two things. The first one is your vocabulary and the sentence framing. Once you know the vocabulary as well as sentence framing, now you can be confident enough because now you have got the knowledge. Now you need only one. Yes, sir. Actually, I would like to say I'm more comfortable in now in sentences only. Yeah, that's great. And you will be more comfort. You will be very comfortable in all sentences once we complete the sheets. Fine. So let's get right into the show. थोड़ा सा हम होम पर प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं करेंगे, है ना? Okay. So अभी हम बात करेंगे third word. Is Ankur making a call to somebody? Yes, sir. Ankur is making to call somebody. नहीं, अच्छे से बोलना है. Ankur is making a call to somebody. To somebody. One second. Yes, Ankur is making a call to somebody. Whom is he making a call? He is making a call with with his friend. देखिए एक बात समझते हैं कि जो मेक अ कॉल होता है तो अपन लोग टू लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? He is making a call to his friend. Great. To his friend. Next. Is your brother informing somebody? Yes, sir. My brother is informing somebody. Whom is he informing? He is informing my sister. Okay. Is your father giving money to somebody? Yes, sir. My father is giving money to somebody. Whom is he giving money? He is giving money to the poor. Interesting. Is your friend showing off clothes to somebody? Yes, sir. My friend is showing cloth to somebody. Showing off clothes to somebody. Showing off clothes. Yeah, showing off clothes to somebody. Show off का मतलब होता है दिखावा करना. Next. Is your friend forgiving somebody? Sorry, sir. What is it? पहले इसको अपन कंप्लीट करते हैं. Show off मतलब दिखावा करना. Whom is he showing off the clothes? He is so off the cloth to friend. Showing off the clothes to my friend. Once again. He is showing off the cloth to my friend. सही है. Next. Forgive. Forgive का मतलब होता है माफ कर देना. माफ करना. So is Ankur forgiving somebody? Yes, sir. Ankur is forgiving somebody. Whom is he forgiving? He is forgiving a person. Okay. Is treated like advising somebody? Is he? Yeah, he is advising somebody. Whom is he advising? He is advising to his sister. देखो समझो, इंग्लिश में बेसिकली जो वर्ब होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं. कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं. एक वर्ब होता है, अगर मैं वर्ब के बारे में वर्ब समझते हैं ना, वर्ब का मतलब है एक्शन. तो इंग्लिश में जो वर्ब होते हैं बेसिकली वो दो टाइप के होते हैं. कौन से वो दो टाइप होते हैं आइए जरा समझते हैं. पहले प्रकार के इंग्लिश में जो वर्ब होती है उसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है कि जब भी ट्रांजिटिव वर्ब आएगी उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा. क्या आएगा? ऑब्जेक्ट. जैसे अगर आप इस सेंटेंस से देख पा रहे फॉरगिव, फॉरगिव आया तो फॉरगिव के बाद क्या आ गया? एक ऑब्जेक्ट आ गया. तो ये क्या हो गया? सॉरी सर सॉरी सर. अच्छा आओ जरा सीखते हैं. क्या बात है, आपने येलो कलर की टी शर्ट पहनी हुई है और ये भी मैं येलो कलर का पेन यूज कर रहा हूँ. फाइन, मैच कर रहा है ना? ओके. तो देखो मैं आपको कह रहा था वर्ब दो प्रकार की होती है. एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या चाहिए होता है हमें? ऑब्जेक्ट. तो देखो
ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक वर्ब है और इसके तुरंत बाद क्या लिख दिया अपन ने, somebody, somebody यस और नो। तो yes अगर Yes, sir. देखो तो ये जो वर्ब हो गई, ये कैसी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव, क्योंकि इसके बाद हमें किसकी transitive जरूरत पड़ी, object ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ गई, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांस। दूसरी वर्ब होती है इंट्रांजिटिव, क्या होती है, intransitive इंट्रांजिटिव वर्ब। इस वर्ब को जब किसी से दूसरे ऑब्जेक्ट से जुड़ना होता है तो इसको जरूरत पड़ती है प्रीपोजिशन की। इसकी जरूरत पड़ती है preposition Preposition. और उसके बाद हम लगाते हैं उसका ऑब्जेक्ट। object तो ऐसी वर्ब को कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहा जाता है, intransitive verb Intransitive. अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा तो आप समझ जाएंगे। जैसे समझो, यहाँ पे लिखा हुआ इज योर फ्रेंड शोइंग फोटोज टू समबडी, तो यहाँ पर क्या आ गया, टू, to राइट। so that means this is the like intransitive जब हमें एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जोड़ना पड़ता है तो अपन क्या लगा देते हैं, Two. object लगा देते to हैं। बात समझ पा रहे हैं। हम्म जैसे कि देखो, जैसे यहाँ पे ये लिखा टीच, टीच के बाद हमने ऑब्जेक्ट डायरेक्ट रख लिया, यस और नो। yes sir एक सेंटेंस और देता हूं, मैंने कहा आर यू टॉकिंग, आई एम सॉरी, आर यू टॉकिंग टू समबडी। देखो टॉक को समबडी से जोड़ने के लिए हमने क्या लगाया, to टू लगाया, क्योंकि जो टॉक जो वर्ब है वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, intransitive इसलिए टॉक को समबडी से जोड़ने के लिए हमने क्या लगाना पड़ा है, to टू लगाना। अंकुर समझ पा रहे हो इस बात को, हाँ सर, हाँ सर. गुड। और यहाँ पर क्या हो रहा है, टीच के साथ क्या हो रहा है, टीच के बाद डायरेक्ट हमने क्या लगा दिया, somebody। तो जो टीच कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। कैसी वर्ब है, transitive Transitive. अच्छा एक बात बताओ रचित, यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम राइट, no हिंदी मीडियम, दैट्स फाइन। अंकुर आर यू फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, अंकुर आई थिंक ही इज फेसिंग नेटवर्क इशू। तो देखो network issue हिंदी में इसे कहा जाता है, हिंदी में अगर आपने पढ़ा होगा, या यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम राइट, I'm from Hindi medium. यू आर आल्सो फ्रॉम हिंदी मीडियम, Sir, yeah. Yes, sir. I'm from Hindi medium. ओके कोई बात नहीं है। तो हिंदी में अपन पढ़ते हैं, हिंदी में क्या पढ़ते हैं, दो प्रकार की क्रिया होती है, एक होती है अकर्मक क्रिया, एक होती है सकर्मक क्रिया। तो जो सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया जो होती है उसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहा जाता है, transitive verb ट्रांजिटिव वर्ब। तो कुल मिलाकर इतना है कि ट्रांजिटिव एक जो वर्ब है उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो उसे अपन बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहेंगे गाइस, transitive तो जो टीच है, टीच कैसी वर्ब है, आप बताओ ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, transitive ट्रांजिटिव है क्योंकि टीच के तुरंत बाद क्या आ रहा है, somebody, object ऑब्जेक्ट आ रहा है। अच्छा बताओ टॉक कैसी वर्ब है, talk to someone या talk someone transitive इंट्रांजिटिव। टॉक के बाद देखो हमेशा आता है टू। talk to सर हम talk के बाद ऐसा भी तो बोल सकते हैं talk someone नहीं गलत बोलते हैं, अगर ऐसा बोलते हैं तो हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। आई एम टॉकिंग टू समबडी, राइट, ओके। आप समबडी से बात करते हैं, आप समबडी बात नहीं कर रहे हैं, आप समबडी से बात कर रहे हैं, to someone, ठीक है। ओके एक्चुअली मैंने सुना था लाइक इन लाइफ और इन एनी मूवी होता है go and talk someone, हाँ, go and talk someone, talk someone नहीं, talk to somebody। देखो एक और एग्जांपल दूंगा तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में इतनी बड़ी बात क्या है। अगर हम टू लगाएं या ना लगाएं कितना फर्क पड़ता है, आइए जरा सीख लेते हैं कि कितना फर्क पड़ता है, कि टू लगाते हैं तो कितना फर्क पड़ता है और नहीं लगाते हैं तो कितना फर्क पड़ता है। एक काम करता हूँ, मैं ये व्हाइट बोर्ड लेता हूँ, देखो व्हाइट बोर्ड देख पा रहे हैं आप लोग, no not at अभी भी नहीं, no अब yes now या अब देखिए क्या होता दरअसल में, जैसे कि आपने किसी से कहा राइट टू मी, क्या कहा, राइट टू मी। इसका मतलब आप सामने वाले से कह रहे हैं कि आप मुझे लिख देना, मतलब जो भी आपकी बात हो, जैसे कोई व्यक्ति आपसे बात करना चाह रहा है और आप जल्दी में हैं, आपने कहा या प्लीज यार आई एम गेटिंग लेट, प्लीज राइट टू मी। क्या कहा आपने, राइट टू मी, मतलब आपने उससे क्या कह रहे हैं, जो भी बात है अपन कर लेंगे, अभी तो मुझे लिख देना, मैं पढ़ लूंगा।
आपने कहा राइट टू मी। राइट टू मी मतलब मुझे लिख देना, मुझे पत्र लिख देना, मुझे जीमेल लिख देना, मुझे व्हाट्सएप कर देना, ये मतलब निकलेगा, ठीक है। अगर आपने कह दिया राइट मी, क्या लिख दिया, क्या बोला आपने? राइट मी। बोलने में तो समझ में नहीं आ रहा, बट मैं लिख के बताऊंगा तो समझ पाएंगे। अगर आपने कह दिया राइट मी, तो राइट मी दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो ऐसा और एक हो सकता है ऐसा। अगर ये वाला लिखा राइट मी, अगर मैंने कहा राइट मी, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन की तरह बिहेव करेगा। मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग पेन उठाइए और क्या लिखिएगा अपनी नोटबुक में, मी लिखो। राइट मी मुझे राइट समझ पा रहे हैं? ओके ये ओके निकलेगा सेकंड वाले का। जो राइट मी फर्स्ट है, या जो फर्स्ट वाला है, इसका क्या मतलब निकलेगा? अगर मैंने कहा राइट मी, क्या कहा? राइट मी। राइट मी, इसका मतलब ये हो जाएगा मुझे ही लिख दो, आप मुझे ही लिख दो, मुझे ही लिख दो, या मेरे ऊपर ही लिख दो। मान लो आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आज फेयरवेल पार्टी है, सब लोग क्या कर रहे हैं, वो एक टी शर्ट पहन के आए हुए हैं और लास्ट दिन अपन क्या करते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, लिखते हैं राइट? तो ये आप लोगों के कॉलेज में हुआ होगा, राइट? यस। नहीं सर नहीं सर, कभी कॉलेज नहीं गया सर। ओके, आपने क्या किया है? मैं ग्रेजुएशन में क्या किया आपने? प्लस 10th प्लस प्लस 2 किया हूँ सर। अभी ग्रेजुएशन नहीं किया आपने? नहीं नहीं सर, उसी टाइम 12th क्लास पास करते ही आर्मी में ज्वाइन हो गया था। अच्छा, तब से आप आर्मी में ही है ना? हाँ सर। और अभी एसएसबी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, है ना? हाँ सर हाँ। गुड। अब देखो, सो चलो कोई बात नहीं, वो आगे तो जनरली ऐसा होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, टेक्निकल कॉलेज में, कि जो फेयरवेल पार्टी होती है उसमें टी शर्ट में व्हाइट कलर की होती है और लोग पेन से कुछ भी लिख देते हैं, जो भी उन्हें लिखना होता है। वेल, सो अगर कहा जा रहा है राइट मी, मतलब मुझ पर ही लिख दो आप, तो राइट, इट इज कॉल्ड राइट मी। बट व्हेन यू से राइट टू मी, इसका मतलब क्या है? मुझे लिख देना, जो आपके मन की बात है वो मेरे लिख देना। तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा अपन धीरे धीरे समझ जाएंगे कि चीजों का कैसे कैसे फर्क पड़ता है। अपन फिर से अपनी शीट की तरफ चलते हैं। तो अगर मैंने आपसे कहना है कि इज योर टीचर एडवाइजिंग समबडी, आंसर क्या हो सकता है रचित? Yes sir, my teacher is advising somebody. Whom is your teacher advising? My teacher is advising students. My teacher is advising students. Great. Next, अंकुर, forbid का मतलब होता है मना करना। तो अंकुर, is your friend forbidding somebody to smoke? Yes, my friend forbidding somebody to smoke. Whom is he forbidding to smoke? He is forbidding his friends to smoke. Okay. Next, Rachit, is a student listening to somebody? Yes sir, student is listening somebody. Listening to somebody. Student is listening to somebody. A student is listening to somebody. Whom is he listening? He is listening to teachers. To teacher. Very nice. अब देखो, listen कैसी verb है? In transit. Listen के साथ हमेशा क्या आता है? To आएगा. All right. Ankur, is your sister apologizing to somebody? Yes, my sister is apologizing to some. Apologize का मतलब होता है माफी मांगना. Whom is she apologizing? She is apologizing to my mother. Great. Apologize के साथ हमेशा क्या आता है? To आता है. Great. Next देखेंगे हम लोग. Ankur, is your brother avoiding somebody? Sir, sorry sir. Avoid का मतलब होता है किसी चीज से दूरी बनाने की कोशिश करना. To make distance from somebody. Sir, yes, my brother is avoiding somebody. Whom is he avoiding? He is avoiding one of his friend. Bro, one of his friend या friends? One of his friend. नहीं, देखो one of जब भी हम लिखेंगे तो one of के बाद हमेशा क्या आएगा? प्लूरल. तो फ्रेंड ना आके क्या आ जाएगा? फ्रेंड्स. दोस्तों में से किसी एक को. बहुत सारे दोस्तों में से किसी फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं. नेक्स्ट देखते हैं. Rachit, is your friend ignoring somebody? Yes sir, my friend is ignoring somebody. Is Ankur ignoring something? No, Ankur is not ignoring something. और कर रहा होगा तो क्या कहेंगे?
Yes, he is ignoring something. अच्छा, अब देखो इसमें जो शीट में एक छोटी सी गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है आप लोग मुझे बताइएगा। Whom is he ये throwing? जो 2 सेंटेंस at? लिखे हैं इनमें से एक सेंटेंस में कुछ गलती है, बताइए क्या गलती है? He is ignoring something. Whom he is ignoring? Ignoring टू तो आएगा नहीं सर इसमें। उसके बाद टू आना चाहिए। Ignoring टू। ठीक है, Ignoring something. maybe. सर टू नहीं आना चाहिए इसमें। टू नहीं आना चाहिए। Ignoring सब सही है, दोनों सही सेंटेंस सही है। whom is he ठीक है। ignoring? अंकुर आप बताइए, आपको लग रहा है कि दोनों में से किसी में कुछ करेक्शन करने की जरूरत है? नहीं सर। देखो करते हैं करेक्शन क्या है। देखो प्यारे बच्चों, जब हम समथिंग मतलब किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो होता है व्हाट। क्या होता है? व्हाट। तो अगर ये क्वेश्चन हो रहा है इज अंकुर या इज अमित इग्नोरिंग समथिंग, तो आंसर आएगा अंकुर इज इग्नोरिंग समथिंग। फिर हम पूछेंगे अंकुर क्या इग्नोर कर रहा है, तो क्वेश्चन होगा व्हाट इज ही इग्नोरिंग। क्या हो जाएगा? What is he ignoring? अगर हमें होम वाला क्वेश्चन लगाना तो फिर हमें यहाँ से समथिंग को यहाँ से हटाना पड़ेगा, उस जगह क्या लिखना पड़ेगा? Somebody. फिर हमें लगाना पड़ेगा somebody। क्या लगाना पड़ेगा? somebody। क्योंकि somebody को जानने के लिए अपन क्या लगाते हैं? who भी लगाते हैं और whom भी लगाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट है तो whom और सब्जेक्ट है तो who। बात समझ पा रहे हैं क्या? whom मतलब किसको? ठीक है। Is it clear? सर Not clear? yes sir. Yes sir. What means something and like whom के लिए फिर हमें somebody proper देना होगा। whom he मतलब पर्टिकुलर पर्सन और whom लोगों के बारे में बात करते हैं, पर्सन के बारे में बात करें, पीपल के बारे में बात करें। हाँ पर्सन ठीक है ना। और व्हाट किसके बारे में बात करेगा? किसी सामान या किसी के बारे में बात करेगा। आई होप ये बात क्लियर हो मतलब कोई गई किसी चीज के बारे में। ओके रचित, is अंकुर answering somebody? yes sir, Ankur is answering somebody. पहले से पूछे तो सही वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। yes sir, obviously I can see. Ask please. Ankur, are you answering somebody? Yes, I am answering somebody. Okay, whom are you asking? Answering? आंसर दीजिए आप, पहले मुझे आंसर कीजिए रचित। yes sir, so he is answering to sir. नहीं, आंसर के साथ देखो डायरेक्ट somebody लगा है तो क्या हो जाएगा? okay sorry, he is answering my English teacher. उसकी जरूरत ही नहीं है, बस मैंने इतना पूछा क्या वो आंसर कर रहा है या नहीं कर रहा है, किसको कर रहा है वो अपन बात करेंगे। Is he answering somebody? Yes, he is answering somebody. He is answering somebody. Now let me ask you, whom is he answering? He is answering to Ask my him English first. teacher. Ask him first. Okay. Ankur, are you answering somebody or whom are you asking? Yes, answering somebody. Whom are you I am answering? answering my English teacher. Okay. I am answering my English sir. teacher. He is answering to my English teacher. He is Who? answering my English teacher. No, he is answering his English teacher. His. Right? Sir, इस कंडीशन में सर हम लोग एक ही ग्रुप में बैठे, that's why I am at like my English teacher. हाँ ठीक है, सही है। In अगर this situation. ये थॉट आपके दिमाग था तो that was right and correct thought. नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आंसर करना और रिप्लाई करना एक ही बात है, लेकिन अंतर क्या होता है देखो ध्यान से समझना। आंसर के साथ हम डायरेक्ट किसी व्यक्ति का नाम लगा सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन रिप्लाई के साथ हमें क्या लगाना पड़ता है? हमेशा टू लगाना। तो लेट मी आस्क यू द सेम क्वेश्चन। इज अंकुर से पूछता हूँ रचित के बारे में। इज रचित रिप्लाइंग टू समबडी? अंकुर। Yes, Rajat is replying to somebody. You should ask him first. Rajat, are you replying to somebody? Yes, I'm replying to somebody. Yes, sir, he is replying to somebody. Whom is he replying? Rajat, whom are you replying? I'm replying to you. Yes, sir, he is replying to me. Great. Next, Rajit, is Ankur helping somebody? Ankur, are you helping somebody? Yes, I am helping somebody.
Yes, sir. He is helping somebody. All right. Whom is he helping, Rachit? Ankur, whom are you helping? I am helping my friends. Yes, he is helping to his friend. Come on. He is helping to his friend. Helping Once his again. friend. He is helping his friend. Great. Next. He is Ankur. helping. Okay. Is Rachit showing photos to somebody? Rajat, are you showing photos to somebody? Yes, I'm showing photos to somebody. Yes, sir. Answer please. He is. Sir, might be there's network issue. He is showing photo to somebody. Okay. Whom is Rachit showing photos? Rajat, whom are you showing photos? I'm showing photos to my friends. Sir, he is showing photos to his friend. Rachit, is Ankur teaching somebody? Ankur, are you teaching somebody? No, I am not teaching somebody. No, sir, he's not teaching somebody. Come on, one more time. No, sir, he is not teaching somebody. Great. अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट शीट पे प्रैक्टिस करेंगे. आपकी स्क्रीन पे एक और शीट आ गई होगी, देखो आप देख पा रहे हैं वाई वाली शीट. Yes, sir. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रीजन वाले क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ओके. तो हम क्या करेंगे, जैसे अभी हम कॉन्वर्सेशन करते हैं होम पर, वैसे ही करेंगे वाई पर. वाई पर हमें ज्यादा अवेयर होने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे आंसर यस नो में नहीं होते, यहाँ पे आपको सोचना पड़ता है फिर आंसर करते हैं. ठीक है, ठीक है. फिलहाल आपको ये मान के चलना है, ये सारे काम आप लोग कर रहे हैं. क्लियर है? All right. So I would like to ask you, Rachit, is Ankur making a call to his father? Is your friend making, is Ankur making a call to his father? Sir, इसको तो yes में ही करेंगे ना. Yes, he is making तो सही, a अपने call. पापा को कॉल लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? Ankur, are you making a call to your father? Yes, I am making a call to my father. Yes, sir, he is making a call to his father. Why is he making a call to him? Why are you making a call your father? नहीं, देखो योर फादर एक बार आ गया ना, हिम लगाइएगा, प्रोनाउन को यूज कीजिएगा. So now I would like, why are you making a call to him? I am making a call because I call him daily. Okay, so it's just a general call. He is making a call to his father Because Daily. he used to this. because he is used to. Used All right. Next, Ankur, is Rachit throwing a party to us? Rajit, are you throwing a party to us? Yes, I'm going to throw a party. Sir, he is going to throw a party To us. to us. Why He is going is to he throw throwing the Why is he throwing the party to us? Rajit, why are you throwing a party to us? Actually, I'm throwing this party because I think I'm gonna select in upcoming interviews. Okay, sir, he is throwing a party because he is going to select, and he got selected in his interview. No, because he thinks he is going to be selected in the interview. Yes, I think. I mean, he thinks. He thinks. Okay, sir. Sir, he's going to throw a party because he thinks that he's going to select in his upcoming interview. Rachit select करेगा नहीं, Rachit select होगा. He is going to be selected. He is going to be selected. क्या हो जाएगा? He is going to be. He is going to throw a party because he is going to be selected in his upcoming interview. Very nice. I also think. Rachit, let me ask a question to you for Ankur. Is Ankur giving money to his brother? Ankur, are you giving some money to your brother? Yes, I am giving money to my brother. Why are you giving this money to your brother?
I'm giving money to my brother for his college fees. आंसर नहीं He is giving some money to his brother because his brother need to submit his college fees. because his brother has to submit college fee. College fee. Interesting. Let me ask you the other question. Is Ankur motivating his younger brother? Ankur, are you motivating your younger brother? Yes, I am motivating my younger brother. Why are you motivating your younger brother? I am motivating him to join NDA. Join? NDA, NDA. National Defense Academy. Okay, NDA. Yes. Okay. Yes. Yes, sir. He is motivating his brother to join NDA. All right. Show off छोड़ देते हैं. Is Rachit advising the children? Rajat, are you advising the children? Yes, I'm advising the children. Yes, sir. He is advising the children. देखो समझो. Boy का plural क्या होता है? Why? Boy का boys. Girl का plural क्या होता है? Girls. 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 Okay, sir. Children already plural है. Children already Children plural. already. Yeah. तो child का होता है children. तो उसमें s Children. Okay. क्या होता है आंसर? I'm advising the children. हाँ, I'm advising the children. Advising अंकुर आप the बताइए. children. Rachit is. Sir, yes, sir. Rajat is advising children. Okay, why is he advising them? Rajat, why are you advising them? Actually, I'm advising them because they are making noise. Sir, Rajat is advising them because they are making noise. देखो एक बात समझो. आजकल जो दुनिया है वो ऑनलाइन होती जा रही है. क्या होती जा रही है? ऑनलाइन. अब हमें ना कुछ ऑनलाइन एटिकेट सीखना पड़ेगा. तो आपको क्या करना चाहिए? देखो, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ तो मुझे शीट में देखना होता है कि वहां से वोकैबुलरी उठाना पड़ता है. यस सुनो. लेकिन जब आप आंसर देते हैं, आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो आपको कहीं पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं. तो आपको क्या करना है? जब आप आंसर करेंगे आपको डायरेक्ट आपको कैमरे में देखना है. कहाँ पे देखना है? कैमरा में. तो जब आप कैमरे में देखेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप मुझे देखकर बात कर रहे हैं. I'm talking to you. Yeah. राइट. ओके. Right. एक बार फिर से करते हैं. Is Ankur advising the children? Ankur, are you advising the children? Yes, Rajat, I am advising the children. Why are you advising the children? I am advising the children to study. Okay, so sir, he is advising the children to study. देखो अभी रचित ने जो बोला ऐसा लग रहा था ना अंकुर हमें कि वो बिल्कुल हमें देखकर बात कर रहा है. हाँ सर. हाँ, तो हमें देखो बड़ा ऑड सा लगता है कि आप कैमरे में देख रहे हैं लेकिन आपको फील करना है कि सामने लोग बैठे हुए हैं. समझ रहे हो ना? तो धीरे-धीरे एटिकेट्स आ जाएंगे. डोंट वरी अबाउट इट. वेल, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन फॉर अंकुर. या, इज अंकुर लिसनिंग टू म्यूजिक? Ankur, are you listening to music? Yes, I am listening to music. So why are you listening to music? I am listening to music because I like it. I like listening music. Yeah, sir, he is listening to music because he like it. आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं. He is listening to it because he likes. Yes, he likes. और म्यूजिक की जगह क्या लगा सकते हैं? It, क्योंकि एक बार अपने म्यूजिक के बारे में बात कर ली है ना? All right. So Ankur is listening to music because he likes it. He likes it. Yeah, he likes it. He likes it. Okay, so is Rachit apologizing to his mother? Rajat, are you apologizing to your mother? Yes, I'm apologizing to my mother. Yes, sir, he is apologizing to his mother. Why is he apologizing? Rajat, why are you apologizing? Actually, yes, I'm apologizing to my mother. Actually, I made some mistake earlier. Yeah. Sir, he's apologizing to his mother because he made some mistakes earlier. Very nice. You are really speaking well. इतनी fluency ना बहुत होती है. Really. Okay, let me ask you, Rachit, for Ankur. Is Ankur forgiving his younger brother?
यहाँ पे forgiving Ankur, हाँ are you forgiving your younger brother? Yes, I am forgiving my younger brother. So why are you forgiving him? Because I am forgiving him because he broke my new phone. Sir, No, actually he it is not the forgave question. his. No. This is not the correct answer. How? जरा से समझने की हम लोग Because कोशिश. he is broken my new phone. No, उसने No, ब्रेक किया, उसके लिए तो आपने forgetting. उसको डांटा होगा, उसके लिए आपने उसको forgive हाँ. नहीं किया. Okay, sir. I understand. Answer please. Because I forgive my brother because he is apologizing to me. ये भी हो सकता है, और आप बोल सकते हैं because I want to show some kindness. Oh, I'm kind to him. kind to Okay, him. sir. है ना? हाँ, चलो. Next लेते हैं, इसको छोड़ते हैं. Yeah. So is Rachit avoiding toxic people? Rajat, are you avoiding toxic people? Toxic मतलब सर वो जो नशा करते हैं वैसे लोग. नहीं. Toxic are different people. हाँ, Rachit कौन होते हैं toxic people? Toxic, Toxic सर नहीं, जो toxic. टॉक्सिक मतलब जो बहुत ज्यादा बात करते हैं उनके लिए यूज होता है, या फिर सर वो जो पर्सन बहुत ज्यादा मतलब इरिटेटिंग काइंड ऑफ होते हैं? हाँ देखो, इरिटेट से मतलब इरिटेट भी हो सकता है. देखो, टॉक्सिक पीपल उन्हें बोलते हैं जिनसे आपको कोई लाइफ में फायदा नहीं होने वाला है, वहां तक तो ठीक है. हाँ, उल्टा वो आपको परेशान और करेंगे. राइट. देखो, हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमें कोई फायदा नहीं. जैसे आपके जो फ्रेंड्स हैं, क्या फ्रेंड से आपको बेसिकली अगर देखा जाए तो कोई फायदा होता है क्या? नहीं, बेसिकली बल्कि कोई सर फ्रेंड विद बेनिफिट वाला मिलते पर्सनल कोई हैं. बेनिफिट नहीं. बस बेनिफिट क्या है? हाँ. मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, हाय हेलो कर लेते हैं, इतना हमें रिलैक्स हो जाता है, राइट? और अगर हमें कभी हेल्प की जरूरत पड़ती है, थोड़ा बहुत हम हेल्प मांग लेते हैं, थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं, राइट? बाकी पर्सनल लेवल पे तो कोई खास बेनिफिट होता नहीं है, राइट? तो फ्रेंड या आपके कुछ ऐसे भी फ्रेंड हो सकते हैं जो आपकी कभी मदद नहीं करते हैं, क्योंकि बेचारे वो नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से, वो एबल नहीं है. आप उनकी हमेशा मदद करते हैं, लेकिन फिर भी आप उनके साथ फ्रेंडशिप रखते हैं. यस और नो? यस, रखते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी तो कभी मदद ना कर सकते हैं ना करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, आपको मतलब even they tease us. they tease you. Yes. Yeah, they tease you, they pull you down, they pull your leg. Down. Getting the point? Yeah. So the people are called toxic people, right? मतलब ऐसे लोग जो आपसे क्वेश्चन तो कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई कंसर्न नहीं है, they are just asking for the sake of asking, are called toxic people. Getting the point? Yeah. Okay, so let me ask you the same question again to Ankur for Rachit. Is Rachit avoiding toxic people? Rajat, are you avoiding toxic people? Yes, I'm avoiding toxic people. Toxic people. Yes, sir. He is avoiding toxic people. Why is he avoiding them? Rajat, why are you avoiding them? Actually, I'm avoiding them because they pull my leg. Sorry, Rajat. Because they pull his leg. I'm avoiding them because he pull my leg. Okay. Sir, he is avoiding them because they pull Rajat's leg. ये आप his भी लगा सकते थे, because they pull his leg. His leg. Okay. Is Ankur ignoring some people? Ankur, are you ignoring some people? Yes, I am ignoring some people. So why are you ignoring them? I'm ignoring them because they are toxic. Okay, so yes, sir, he is ignoring them, ignoring people because they toxic him. They are toxic. They are toxic. Answer, please. They are toxic. Yeah, yes, sir, he is ignoring them because they are toxic. Toxic, है ना? Okay. Toxic, yeah. Next, Rajat. Is Ankur going to office? Ankur, are you going to office? Yes, I am going to office. So why are you going to office? No, why are you going there? Yeah, why are you going there? I am going there to do my work. Sir, he is work there. That's why he is going there. He is working. He works there. Therefore, he works there. That's why he is going there. Okay. Is Rachit helping the poor?
Rajat, are you helping the poor? Yes, I'm helping the poor. Sir, yes, sir, he is helping the poor. Why is he helping them? Rajat, why are you helping them? Actually, they are helpless. That's why I'm helping them. Sir, Rajat help them because he thinks that they are the helpless. That is great. Next, Rajat, is Ankur forwarding his brother to smoke? Ankur, are you forwarding your brother to smoke? Yes, I am forwarding my brother to smoke. सर ये तो वाई वाला आंसर पहले ही हो गया नहीं अभी नहीं क्योंकि स्मोक सर स्मोक करने के लिए रोक रहा है तो पर्टिकुलर हमारे पास लिसन प्लीज देखो फॉरबिड का मतलब क्या है मना करना ठीक है क्वेश्चन ये है क्या अंकुर उसके भाई को मना कर रहा है स्मोक करने के लिए तो इसके दो ही आंसर हो सकते हैं या तो वो मना कर रहा है या नहीं कर रहा है फिर हम पूछेंगे अगर मना कर रहा है स्मोक करने के लिए क्यों मना कर रहा है Okay, so why are you forwarding your brother to smoke? I am forwarding my brother to smoke because it is not good. Smoking is not good for health. Okay, so he is forwarding his brother to smoke because that is injurious to health. इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं because it is injurious to health. Smoking is injurious to health. क्या लगेगा? It. और सर इसे हम that is से pronounce नहीं कर सकते. That भी बोल सकते हैं. That is injurious. Yeah, sure. Okay. That भी लगा सकते हैं, है ना? Okay. Next देखते हैं. So अभी किससे क्वेश्चन पूछा था मैंने? मैंने अंकुर से पूछा था. ठीक है, अब मैं पूछता हूँ. Yeah. Is Rajat informing his batchmates about exam? Rajat, are you informing your batchmates about your exam? Yes, I'm informing my friends about exam. Okay, yes, sir. He is informing his batchmates about exam. Why is he informing them? Rajat, why are you informing them? Actually, I am informing them because exam about to come or exam would be conducted earlier. Yeah. Sorry. Yes, sir. He is That's informing exams are approaching. Yes, exam are approaching. Exams are approaching. Exams are approaching. और सर इसे हम इस तरीके से बोल सकते हैं क्या कि एग्जाम would be conducted earlier. Yeah. सही है. Would be sir. Would be तो नहीं बोल सकते ना. Would be yeah because exam would be conducted earlier. अगर आपको संभावना लग रही है और आपको पता ही है तो आप will be लगाएं because exam will be conducted earlier. Yeah. Because of this pandemic we can't say any like that will be conducted. That's why I'm using date आ गई है तो will be conducted. Date नहीं आई है तो would be conducted. आई है तो would be conducted. Okay. So maybe भी बोल सकते ना might be या maybe. हाँ might be conducted जब बहुत ही least possibility हो और may be conducted जब ज्यादा possibility हो. ज्यादा हो और would be सर इसके बीच में आता है ना कहीं like would be मतलब आप ऐसे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. 5-10% के लिए would be और अगर मान लेते हैं कि 10-15% है तो might भी लगा दो. Might be 50% के आसपास may भी लगा दो. और 0.00001 मतलब बहुत ही कम पॉसिबिलिटी के लिए could लगा सकते हैं. Could है ना. अभी अपन पढ़ेंगे मॉडल्स मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है इसलिए मैं चाह रहा हूँ जल्दी आपको एक बार शीट पढ़ा दूं ये चीजें बता दें फिर आप अच्छे से कन्वर्स कर सकते हैं. यस प्लीज आंसर प्लीज. Sir, he is informing them because the exam is approaching. Exams are approaching. Are approaching है ना. All right. तो अभी हमने किस चीज के बारे में प्रैक्टिस की? सर हमने अभी क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस की why और अभी बेसिकली हमने दो क्वेश्चन ऑर्डर प्रैक्टिस की. पहला हमने प्रैक्टिस की होम पर और फिर बाद में हमने प्रैक्टिस की वाई और हमने फर्स्ट डू और सेकंड डू हम पहले ही कर चुके थे. आर और एम तो हम पहले ही पढ़ चुके थे. अभी हमने क्या सीख लिया? ही एंड अब हमने तो थर्ड डू के बारे में और सीख लिया है ना. या दैट्स इट. तो अभी हम लोगों ने 3 टाइम वर्ड या 3 हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट कर लिए हैं. इज एम आर प्लस क्वेश्चन वर्ड. ज्यादा से ज्यादा हमने क्वेश्चन वर्ड भी देखे जितने मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन वर्ड थे वो लगभग हमने सारे देख लिए है ना. अब इंग्लिश में अगर मैं बात करूं हेल्पिंग वर्ब की तो इंग्लिश में 11 हेल्पिंग वर्ब होती हैं. कितनी हेल्पिंग वर्ब होती हैं? 11.
और अगर मॉडल वर्ब के बारे में बात करूं तो वो होती हैं 13। कितनी होती हैं? 13। तो अगर टोटल अगर इन्हें ऐड कर दिया जाए तो वो होती हैं 24। कितनी होती हैं? 24। और जिसमें से हम 3 को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, इज, एम, आर प्लस क्वेश्चन वर्ड, राइट? मतलब अब हमें 21 टाइम वर्ड्स और पढ़ना है, राइट? और इनको पढ़ने में अब अपन को मैक्सिमम जो टाइम लगेगा 7 डेज का टाइम लगेगा। तो 7 डेज हम लगभग सारे टाइम वर्ड्स हम कंप्लीट कर लेंगे। सर हम is to का यूज क्यों करते हैं? is to मतलब मुझे वहां जाना होगा, ऐसा कर used to बोलते हैं उस टाइम पे। used to is to अच्छा ठीक है मैं समझ गया। देखो इसको समझते हैं जरा। वेयर इज इट? या देखो बच्चे, अगर आप कह रहे हैं आई हैव टू गो, क्या कह रहे हैं आप? मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना होगा। अगर आप कह रहे हैं आई हैव टू गो, इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है? इसका मुझे जाना पड़ेगा ही। मुझे जाना पड़ेगा। जाना तो नहीं चाहता हूँ लेकिन मुझे जाना है, मतलब मेरी मजबूरी है। सर इससे तो हैव टू जब लगाते हैं ना तो ये एम्फसाइज करता है ना, मुझे जाना ही पड़ेगा। हाँ, कंपल्शन बता रहा है ना, मजबूरी बता रहा है वो। हाँ। अब ध्यान दो थोड़ा सा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हैव टू बताता कंपल्सन, मजबूरी बताता कि जाना ही है, मतलब मैं चाहता तो नहीं हूँ शायद लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, राइट? बट जब आप कहते हैं, क्या कहते हैं जब आप कहते हैं कि आई एम टू गो, लिसन आई एम टू गो, जब आप कहते हैं आई एम टू गो, क्या कहते हैं? आई एम टू गो। इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको जाने की जरूरत भी है, आपकी जाने की इच्छा भी है, राइट? इसका मतलब ये निकलता है। लेकिन जब आप बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू गो, क्या बोलते हैं? आई वॉन्ट टू गो, मतलब पूरा मन है आपका, पूरा दिल है आपका, पूरे दिल से जाना चाहते हैं, कोई कंपल्सन नहीं है। अगर नहीं जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? लेकिन आपका मन है इसलिए आपको जाना है, तो उसके लिए अपन लगाते हैं वांट टू, राइट? और सर सपोज टू को भी एम टू से रिप्लेस कर सकते हैं ना? सपोज टू नहीं, सपोज टू इज अ लिटिल डिफरेंट। जैसे मैंने आपसे कह दिया यू आर सपोज टू बी देयर, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपको वहां जाना है, राइट? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सर इसका तो इस सेंस में आएगा ना, आई एम एक्सपेक्टिंग यू आर सपोज टू बी देयर, लाइक आपको वहां होना चाहिए इन दैट पर्टिकुलर टाइम। और मतलब मैं टाइम वर्ड लगा रहा हूँ। बिल्कुल, आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुल करेंगे। आप राइट। ओके सर, सपोज जो होगा या सपोज होगा? सपोज थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म सपोज। ये बेसिकली एक प्रकार का पैसिव फॉर्म होता है। अपन जब पैसिव पढ़ेंगे अपनी क्लास में तो आप समझ जाएंगे कि इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म क्या। अभी अपन ने क्या पढ़ा है कि इज एम आर के बाद कौन सी फॉर्म लगाना है? आईएनजी फॉर्म। लेकिन जब हम पैसिव पढ़ेंगे तो इज एम आर के बाद कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म, राइट? थर्ड फॉर्म आएगी और आईएनजी बीइंग। अच्छा, ये वाली बात क्लियर होगी ना, हैव टू और एम टू? यस। हाँ सर, हाँ। इसी की जगह इज टू आ जाएगा। जैसे मैंने कहा उसे जाना है, ही इज टू गो, तो जब हम कहेंगे ही इज टू गो मतलब उसका मन भी है और जाने की जरूरत भी है, लेकिन अगर मैंने कहा ही हैज टू गो मतलब मन हो या ना हो, जाना पड़ेगा, राइट? यस सर। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, बाकी बातें कल करते हैं, ठीक है? Okay, sir. Till then, I would say keep laughing, keep smiling, and keep coming to the model. Bye bye, online. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Bye. Have a nice day.